مجید احمد جائی صاحب کی تحریر ہے، ان کی آپ بیتی ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر ہے بآواز الف افضال۔ حقیقی مسیحا۔ گرمیاں جوبن پر تھیں، سورج کے چڑھتے ہی چرند پرند اپنے اپنے ٹھکانوں میں گھس جاتے تھے، حتیٰ کہ کوئی بشر نظر نہیں آتا تھا۔ گلیاں سنسان تھیں، سڑکیں مسافروں کی راہ تکا کرتی تھیں۔ محلے میں ایسی خاموشی تھی جیسے پورے محلے کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں حویلی کے باہر ڈیرے کے ساتھ لگے کیکر کے گھنے درخت کے نیچے چارپائی پر پڑا درد سے تڑپ رہا تھا۔ رو رو کے میری ہچکیاں بند گئی تھیں۔ کوئی بھی تو نہیں تھا جو میری آواز سن پاتا۔ بھوک سے میں بلبلا رہا تھا، پانی کی پیاس سے حلق خشک ندی کی مانند ہو رہا تھا، ایسی ندی جس سے پانی گزرے ہوئے صدیاں بیت گئی ہوں۔ میری امی جان گھر پر تھی، اس نے بھی میری خبر نہیں لی تھی۔ شاید رات بھر جاگنے کی وجہ سے نیند نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا، ورنہ ضرور خبر لیتی۔ میرے تکیے کے ساتھ آدھا کٹا مالٹا پڑا تھا، میرا منہ چڑھا رہا تھا، درد سے میری چیخیں نکل رہی تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرا دشمن مجھے بجلی کے جھٹکے لگوا رہا ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر گالوں پر اپنے نشانات چھوڑ چکے تھے، کپڑے پسینے اور آنسوؤں سے تربتر تھے، جیسے شریر بچے ابھی ابھی ٹیوب ویل سے نہا کر نکلے ہوں۔ انہی کی طرح میرے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، جسم ساکت زندہ لاش تھا، حرکت تھی اور نہ ہی حلق سے آواز نکل رہی تھی۔ اس حالت میں نہ جانے کتنی ساعتیں گزر گئیں۔ میں درد کی کشتی میں سوار آنسوؤں کے سمندر میں ہچکولے کھا رہا تھا۔ اسی لمحے موٹر سائیکل پر میرے چاچا اور ان کا دوست پٹواری آ رکے۔ میرے چچا کے لیے میرا رونا، چیخنا چلانا، فریاد کرنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ سلسلہ تو پچھلے 4 سال سے چل رہا تھا۔ روز کیپسول گولیاں میرے حلق سے اتاری جاتی، کڑوے شربتوں کے بڑے بڑے گلاس میرے اندر انڈیلے جاتے تھے، مگر مرض تھا، بڑھتا جاتا تھا۔ پیروں فقیروں کے جادو ٹونے منتر سبھی آزمائے گئے تھے، کبھی تعویذ نکالے جاتے، کبھی گلے میں پہنائے جاتے، کوئی دم کر کے چلا تو کوئی میٹھی روٹی پڑھ کر دے گیا۔ حیرت کی بات ہے، ایک مریض اور ہزاروں حکیم، پیر فقیر اپنے اپنے نسخے آزما رہے تھے۔ مریض روز بروز موت کی طرف سفر کر رہا تھا۔ پاکستان کے تمام بڑے سرکاری نیم سرکاری اسپتالوں کی ہوا کھا چکا تھا۔ نام نہاد پروفیسروں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ سفید وردیوں میں من کے کالے یہ ڈاکٹر نوکریوں کے لیے منت سماجت رشوت لیتے نظر آتے ہیں۔ جب نوکری ان کی چوکھٹ کی زینت بنتی ہے، تب ان کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بن جاتی ہے۔ احساس نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، ہوس پرستی غالب آ جاتی ہے۔ ان کی تجوریوں کے منہ کھل جاتے ہیں، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے غریبوں کے پیٹ چاک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری طرح ہزاروں مریض ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ کوئی رو رہا ہوتا ہے تو کوئی فریاد کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ جوڑے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دے رہا ہوتا ہے۔ کسی کی ماں اپنا زیور بیچ کر آئی ہوتی ہے تو کسی کی بیوی اپنا جہیز فروخت کر کے آئی ہوتی ہے۔ کوئی بہن اپنی عزت، اپنی عصمت نیلام کر کے بھائی کی جان بچانے آئی ہوتی ہے۔ لیکن منہ کے چٹے من کے کالے شیطانوں کو کون سمجھائے؟ جانوروں کی طرح انسانوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، ضمیر رکھتے ہوئے بھی بے ضمیرے بن جاتے ہیں۔ یہ سفید وردی میں مسیحا نہیں، کسائی ہوتے ہیں جو بے دردی سے انسانوں کو کاٹے جاتے ہیں۔ کئی ان میں درندہ صفت اپنی بہنوں کو گھروں میں قید رکھ کر دوسروں کی بہنوں کی عزتیں برباد کرتے ہیں۔ یہ مسیحا نہیں، انسانوں کے روپ میں حیوان دندناتے پھرتے ہیں۔
پاگل ہیں جو ان کو مسیحا کا لقب دیتے ہیں۔ مسیحا ایسے ہوتے ہیں کیا؟ میں بتاتا ہوں حقیقی مسیحا کیسے ہوتے ہیں، جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر دوسروں کے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو غریبوں مسکینوں کے دکھوں کا مداوع کرے، وہ ہوتا ہے حقیقی مسیحا۔ جو اپنی زندگی کے شب و روز خدمت خلق میں گزار دے، جس کے ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو، وہ مسیحا ہوتا ہے۔ وہ پٹواری اس حقیقی مسیحا کا دوست تھا، ڈاکٹر خادم حسین کھیڑا جس کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر خوشی عطا کرے جو میرے لیے وسیلہ بن کر آیا تھا۔ پٹواری نے میرے چچا سے پوچھا، یہ کس کا لخت جگر ہے؟ اس کا کوئی نہیں ہے کیا؟ اس کی یہ حالت؟ میں جو سوکھ سوکھ کے لکڑی بن چکا تھا، تن پر کپڑا ڈالنے یا ہٹانے کی جرت نہ ہوتی تھی، پاس پڑے پانی کے جگ سے 2 گھونٹ پانی نہیں لے سکتا تھا، بازو تھے کندھوں کے ساتھ مل گئے تھے، جبڑے جڑ گئے تھے، رگوں میں خون خشک ہونے کو تھا، رنگت سردی مائل ہو چکی تھی، ٹانگیں کولوں کے ساتھ لگ رہی تھیں۔ دیکھنے والے یہی کہتے تھے، آج مرا کل مرا۔ نشتر ہسپتال والوں نے بھی لا علاج قرار دے دیا تھا، پیروں فقیروں نے بھی کالے چٹے بکرے ہضم کر لیے تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بچے کو مرض کیا ہے۔ سبھی اپنی اپنی کتابیں گھول کر پی چکے تھے، کھوپڑی سبھی کی جواب دے گئی تھی۔ چچا پٹواری سے مخاطب ہوئے، دوست یہ میرا بھتیجا ہے، 4 سال سے بستر مرگ پر موت کا مسافر ہے، کوئی دوا سود مند نہیں آتی، کوئی دعا اثر نہیں کرتی، کوئی منتر نہیں چلتا، لاکھوں گولیاں، ہزاروں کیپسول اب تک حلق سے نیچے اتار چکا ہے، درجنوں خون کی بوتلیں اس کی رگوں میں جا چکی ہیں، مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ گھر کے جانور بک گئے، بوڑھے باپ کا چھابا ختم ہو گیا، اب تو گھر کے برتن بکنے لگے ہیں۔ بیچارہ باپ سانس کی تکلیف میں مبتلا ہے، اس نے اپنی دوائی نہیں لی، تمام بچت، تمام جمع پونجی بیٹے پر لگا دی۔ اب تو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے کر گھر بھیج دیا ہے۔ پیروں فقیروں نے آسیب بتایا ہے، سبھی ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے ہیں، لنگر بانٹے گئے، منتیں مانگی گئیں، بکرے قربان کیے، صدقے دیے، مگر سب بیکار۔ میرے یار، رب تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اسے میرے دوست ڈاکٹر خادم حسین کھیڑا کے پاس لے چلو، امید پہ دنیا قائم ہے۔ صبر کی لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، میرے رب نے چاہا تو ضرور صحت ملے گی۔ میرا دوست حکیم بھی ہے اور روحانی علاج بھی کرتا ہے، کئی مریض روتے ہوئے آتے ہیں اور ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ انسان کے روپ میں فرشتہ ہے، فرشتہ خدمت خلق میں ہر وقت محو رہتا ہے، اسے اپنی فکر تو ہے ہی نہیں، سوچتا ہے تو دوسروں کے لیے، جیتا ہے تو درد مندوں کے لیے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیحا ہے جسے لوگ حقیقی مسیحا کہتے ہیں۔ کتنے سہاگ بچائے ہیں، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑنے سے بچائی ہیں، کئی بہنوں کے بھائی ٹھیک ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر خادم حسین پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہے، اس مہربان کے پاس اسے لے چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں میرے دوست، اب یہ زندگی کی آخری سٹیج پر ہے، اس کا ٹھیک ہونا ناممکن ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس اب رقم ہے جو اس پر لگا سکے۔ مختار، نا امیدی کفر ہے، میری مانو، اسے ایک بار، صرف ایک بار ڈاکٹر خادم حسین کھیڑا کے پاس لے چلو۔ اب بے شک دوائی کے پیسے نہ دینا، لیکن ایک بار اسے وہاں لے چلو، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور صحت دے گا۔ پٹواری حساس دل والا تھا، قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی، جہاں انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے اس سے آگے رب رحمان کے جلوے شروع ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ اپنے جلوے
अपनी रहमत का ख़ास नज़ूल फरमाता है। चाचा मुख्तियार बुझे दिल के साथ पटवारी के हमरा मुझे गाड़ी में डालकर डॉक्टर खादिम हुसैन खेड़ा के क्लिनिक की तरफ रवाना हुए। शाम अपनी चादर रूहे ज़मीन पर बिछाने वाली थी। दिन भर का थका मांदा सूरज अपनी किरणें समेटकर आराम फरमाने के लिए बोरिया बिस्तर गोल करके जा चुका था। गमों का, दर्दों का, आंसुओं का, दुखों का, मजबूरियों का, सिसकियों का, आहों का, मायूसियों का, नाउमीदियों का ये आखिरी सूरज था जो अपनी तमाम रियाया के लिए अपनी नगरी में जा चुका था। शाम के बाद, अंधेरे के बाद, काली स्याह रात के बाद आने वाला सूरज नई ज़िंदगी, नई उम्मीदें, नई उमंगें, नए जज्बात, नए एहसासात, खुशियाँ, शहनाइयाँ, कहकहें, मुस्कुराहटें लिए अपनी किरणें रूहे ज़मीन पर बखेरने के लिए बेताब था। मोटर गाड़ी मुझे लिए खेतों, बागों, नदी नालों, दरख्तों, छोटी बड़ी गाड़ियों को पीछे छोड़ती मंजिल की तरफ गामज़न थी। मैं दर्द से करा रहा था, जख्मों को हवा लग रही थी, जिंदगी का धागा टूटने को था, मौत अपनी बाहें फैलाई खड़ी थी। मैं दो कश्तियों का मुसाफिर था, सोचों की जलगार थी और मैं था। चचा और पटवारी अपनी बातों में महर थे। घर से 30 किलोमीटर दूर बधला संत की तरफ चाह रजब वाला गांव है, जहां डॉक्टर खादिम हुसैन खेड़ा का क्लिनिक था। आज भी वहीं कायम दायम है और अल्लाह करे हमेशा कायम रहे। हमारी गाड़ी अपनी मुसाफिर मुकम्मल कर चुकी थी। रजब वाला आ गया था। गाड़ी पक्की ईंटों से बने मकान के सामने रुक चुकी थी। मकान के सामने अंगूरों की बेलें जोबन पर थीं। गुलाब के फूल हवा से लहलहा रहे थे। साथ ही आमों के दरख्त आमों से लदे झूम रहे थे। आमों के दरख्तों के नीचे गाय और भैंसें बांधी हुई थीं। दूसरी तरफ कद्दू की फसल तैयार थी। क्लिनिक की दूसरी तरफ चंद घर थे। शायद ये डॉक्टर साहब और उनके बरादरी वाले रहते थे। खूबसूरत नज़ारा था, मगर मैं क्या करता। जो मौत के सिरहाने बैठा हो वो इन नज़ारों से कैसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। गाड़ी के दरवाजे खुल गए। मुझे 4 मर्दों ने कंधों पर उठा लिया, जैसे मरने वाले के जनाजे को लिए फिरते हों। मेरी आंखें तमाम मंजर अपनी मेमोरी में सेव कर रही थीं। क्लिनिक का दरवाज़ा खुला और हम अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल दवाइयों की खुशबू से महक रहा था। खूबसूरत छोटा सा क्लिनिक था, जिसके दरो दीवार मुख्तलिफ पोस्टरों से सजे हुए थे। बीमारियों से आगाही, इनका तदारुक, बचाव के तरीके लिखे थे। एक तरफ डॉक्टर खादिम हुसैन खेड़ा की तमाम असनाद आवेज़ा थीं। वो असनाद चमक रहे थे जो उन्होंने मेहनत से हासिल किए थे। ये उनकी अनथक मेहनत का मुंह बोलता सबूत था। क्लिनिक के एक कोने में दवाइयों के लिए अलमारी बनी हुई थी, जिसमें दवाइयाँ सलीके से रखी थीं। लेडीज़ के लिए पर्दे का ख़ास इंतज़ाम था। 2 लड़के हेल्प करने पर मामूर थे, जिनको डॉक्टरी ज़ुबान में डिस्पेंसर कहते हैं। घूमने वाली कुर्सी पर सफ़ेद लट्ठे में मलबूस एक खूबरू, सेहतमंद, दिलकश नैन नक्श वाला शख्स बाल संवारे बड़ा जमान था। शाम का वक्त था। क्लिनिक पर मरीज़ों का रश था। हालांकि काफ़ी अंधेरा हो गया था। न जाने दिन भर क्या सिलसिला रहा होगा। सामने टेबल पर लैपटॉप और डॉक्टरी आलात पड़े थे। एक कोने में पड़े मोबाइल की लाइट बार बार ऑन हो रही थी, लेकिन इस शख्स को फुर्सत ही नहीं थी कि मोबाइल की तरफ देख पाते। मुझे तो हर दूसरे हकीमों डॉक्टरों जैसा लगा, जिनसे मैं ज़ख्म खा चुका था, जिनसे मैं ज़ख्म मंदमल करने की दवाइयाँ लेने गया था और जिगर ज़ख्मों से छलनी करवा कर लौटा था। मेरे अंदर नफ़रत का समंदर ठाठे मार रहा था। मेरी नज़रें हकारत से तके जा रही थीं। मुझे देखते ही इसने सभी मरीज़ों को बाहर वेटिंग रूम में भेज दिया और मुझे साथ पड़ी टेबल पर लिटा दिया। हुक्म सादर करते हुए मेरे चचा से मुखातिब हुआ, उसके कपड़े उतारो। मैं मर ज़रूर रहा था, मगर सभी के सामने कपड़े उतारना शर्मिंदगी का बायस था। मैंने साफ इनकार कर दिया। तभी डॉक्टर साहब ने सिर्फ कमीज़ उतारने को कहा। मेरे चचा ने मेरी कमीज़ उतार दी।
अंदर से चिंटियों का पहलवान निकल आया। हड्डियां आसानी से गिनी जा सकती थीं, पसलियों की शरारतें बखूबी देखी जा सकती थीं। काली चमड़ी हड्डियों के साथ चिमट गई थी। डॉक्टर खादिम हुसैन खेड़ा मुझे देखते ही परेशान हो गए। मायूसी के बादल उनके चेहरे का तवाफ करने लगे। उफ, ये हालत, ये नौजवान तो मौत की गोद में बैठा है। चंद सातें यूं ही गुजर गई थीं। फिर यकदम मुखातिब हुए, अल्लाह बेहतर करेगा, वो बड़ा कारसाज है। एकदम उसके तासुरात नाउमीदी से उम्मीद में बदल गए, जैसे रब ताला की तरफ से पैगाम मिल गया हो, जैसे कोई इल्हाम हुआ हो। कहने लगा, मैं दवाई दे रहा हूँ, इसे खिलाओ, अल्लाह शिफा देगा। फिर देखते ही देखते गोलियों, कैप्सूलों, कड़वे शरबतों से शापर भर दिया। साथ ही 15 पुड़ियाँ बना दी। हर पुड़ी में 2 नन्ही नन्ही गोलियाँ रखी गई थीं। कहने लगे, इसमें से एक पुड़ी तब लेनी है जब दर्द उठने लगे, दर्द ना हो तो नहीं खानी। जो हुक्म जनाब का, मेरे चचा ने जवाब दिया। फिर डिस्पेंसर को आवाज़ दी कि पानी लाओ, पानी का गिलास लाओ। डिस्पेंसर हुक्म मिलते ही तामील करके आया। अपने हाथों से 2 नन्ही गोलियां दी, पानी के साथ मेरे हल्क में मुश्किल उतरवाई, क्योंकि जबड़े एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े थे जैसे अल्फी से जोड़ दिए गए हों। मैं तो खुराक भी मशरूब की सूरत में लेता था। खुदा की कुदरत देखो, 2 नन्ही गोलियां, जिसे मैं हकीर समझ रहा था, काम कर गई। मैं भी ठीक था। इतनी बड़ी बड़ी गोलियां कुछ ना कर पाई थी। ये क्या करती, मगर ये मेरी सोच थी। हकीकत कुछ और थी। जहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर्स नाकाम हो गए थे, बड़े बड़े कैप्सूल गोलियां काम ना कर सके, वहाँ 2 नन्ही सी गोलियां बाजी ले गई। इसीलिए तो कहते हैं, जहाँ में रब ताला ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई। वो शाम मेरे लिए बाइस मुसर्रत थी। मेरे लिए गमों से निजात की रात थी। गमों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, अज़ाब मुसलसल से रब ताला ने मेरी अम्मी जान, मेरे अजीज़ों की दुआएं कबूल कर ली थी। वो जो मेरी अम्मी जान ने रातों को मुसल्ले पर बैठकर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी थी, मैंने अपनी गुनाहगार आँखों से देखा था। अम्मी जान की आंखें दुआ मांगते हुए भीग जाती थीं। आंसुओं के सैलाब से दामन भीग जाता था। उन रिश्तेदारों, अजीज़ों, दोस्तों की दुआएं, जिनको मैं दिलो जान से अजीज़ था। दोस्तों के अलावा दुश्मन भी देखते तो दुश्मनी भूल कर मेरी ज़िंदगी की दुआएं ज़रूर मांगते थे। दोस्तों, दुश्मनों की दुआएं रंग लाई थीं, कबूलियत हो चुकी थी। रब ताला ने इंसानी रूप में मसीहा भेजा था, हकीकी मसीहा। आप यकीन करें या ना करें, इन 2 गोलियों के बाद मैंने आज तक दर्द की गोलियां नहीं खाई। ना खाने की ज़रूरत पेश आई। बाकी दवाई खाता रहा, लेकिन वो 14 पुड़ियां वापस कर दी गई। आने वाला सूरज मेरे लिए खुशियां लिए खड़ा था। वो रात मैंने सुकून से गुजारी। मैं जो 4 साल से मुसलसल दर्द से तड़प रहा था, चीख रहा था, आज मेरी अम्मी जान ने भी शुक्राने के नफल अदा किए थे। बड़ी खुश थी, डॉक्टर को दुआएं दे रही थी। सुबह होते ही मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा किया और मिठाई और टाफियाँ बांटी। वो रात ऐसे गुजरी जैसे कभी कोई तकलीफ़ थी ही नहीं। मोहल्ले वाले सुबह सुबह खबर लेने आए, पता तो करें, रात मजीद का शोर सुनाई नहीं दिया। कहीं दम तो नहीं तोड़ गया, ज़िंदगी की बाजी हार कर मौत के आगोश में तो नहीं चला गया। खामोशी छाई है, वरना सारी रात रोने और चीखने की आवाज़ें कानों में गूंजती रहती थी। जो भी आता मुझे पुरसुकून देखकर रब के हुजूर सजदे शुक्र बजा लाता। सभी की खुशी दीदनी थी, उम्मीदें जाग उठी थी। मैं मौत के मुंह से निकलकर ज़िंदगी की तरफ लौटने लगा था। रब ताला की करम नवाजी थी कि मुझे नई ज़िंदगी अता कर दी। उस दिन के बाद मैं कभी नहीं रोया। हाँ, मगर जिस दिन मेरे बाबा ये दुनिया छोड़कर गए, वो दिन मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। 24 अगस्त का दिन था। 24 अगस्त के दिन का एक लम्हा मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। वो अज़ियतनाक लम्हे मैं कैसे भूल सकता हूँ। पापा के आखिरी लम्हात में नज़रें मिलाना नहीं भूला। बहुत सी जिम्मेदारियाँ सौंप रहे थे, वो बोझ जो मेरे नातवा कंधे उठा नहीं सकते थे।
खैर बात हो रही थी ज़िंदगी की तरफ लौटने की, तो डॉक्टर खादम हुसैन खेड़ा के कहने पर मैंने इलाज जारी रखा। अखराजात की सकत नहीं थी, लेकिन इस हकीकी मसीहा की शाबाश थी कि उसने कह दिया, मजीद मैं दवाई के पैसे तब लूँगा जब तुम खुद कमा कर मुझे दोगे, वरना 1 रुपया तक मुझ पर हराम है। उसे उम्मीद थी, यकीन था कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। 2 साल मुसलसल दवाई लेता रहा, मगर 1 रुपया तक नहीं दिया था। 2 साल बाद मेरा जिस्म भुरभुरा हो गया, हड्डियों पर गोश्त चढ़ गया, रगों में खून गर्दिश करने लगा। मेरा चेहरा, मेरा जिस्म देखने के लायक हो गया था। मेरे बाजू, मेरी टांगें आहिस्ता आहिस्ता सीधी होती गईं, उनमें जान आ गई। तमाम जिस्म हरकत में आ गया। हम मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं रही थी। मैं अपनी मदद आपके तहत चलने फिरने लगा था। मेरे जबड़े खुल गए, रोटी चबाने लगा था। फिर यूँ हुआ मैं मरीज़ से तंदुरुस्त नौजवान बन गया। मेरी मंगेतर साइमा, जिसे लोग कहते थे, मजीद अब नहीं बचेगा, तुम कहीं और शादी कर लो, मगर वो थी कि मुझसे आस लगाए बैठी थी। मुझे सेहत की तरफ लौटता देखकर उसका चेहरा खिलखिला उठा था। उसके सपने पूरे होने चले थे। खुशी से फूलें नहीं समा रही थी, सहेलियों को पार्टियां दे रही थी। किस्मत की देवी ने उसे भी बहुत रुलाया था। पहले माँ उसे छोड़कर अल्लाह मियाँ के पास चली गई थी। अभी माँ की जुदाई के जख्म भी हरे थे कि बाप भी दयारे गैर में मेरे जुदाई के आंसू दे गया। सऊदी अरब हज करने गए तो जिंदा पलट कर ना आए, जन्नतुल बकी में मदफन हो गए। बाकी बहन भाई शादीशुदा थे, कोई खबर नहीं लेता था। तन्हाई उसका मुकद्दर बन गई थी। उसे उम्मीद थी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे सहारे की। मेरे सपने देखती थी, मेरी मुंतज़िर थी, जिसका सब कुछ मैं ही था। उसकी सोचों का महवर, उसकी उम्मीदों का सिला, उसका सहारा, उसका हम सफ़र, उसकी खुशियाँ मुझसे थीं। बचपन से मेरा इंतज़ार कर रही थी। बाप की लाज रखनी थी, माँ की ज़ुबान पालनी थी, वरना दुनिया में मुझसे हसीन और भी थे। 2 साल डॉक्टर खादिम हुसैन खेड़ा से इलाज जारी रहा, यहाँ तक कि मैं तंदुरुस्त व तवाना हो गया। देखने वाले ये नहीं कह सकते थे कि मैं 4 साल तो क्या, 1 दिन भी बीमार हुआ था। मैं सेहत याब होकर काम करने लगा। हर माह तनख्वाह जो भी मिलती, इसमें से एक हिस्सा डॉक्टर खादिम हुसैन खेड़ा को दिया था। इसी तरह मैंने तमाम रकम अदा कर दी। दुख सुख जिंदगी का हिस्सा होते हैं। मिलना बिछड़ना जिंदगी का दस्तूर है। जो रूह ज़मीन पर आई, इसे वापस भी पलटना है। मौत का मज़ा चखना है, हर जानदार ने चखना है। मौत अमर है, आकर ही रहती है। पीर, पैगंबर, शहंशाह, अमीरों, फ़कीरों, सब ने मरना है। सबको मौत का जायका चखना है। यही मौत एक दिन मेरे अब्बू को ले गई। 24 अगस्त क़यामत खेज दिन था। सुबह सवेरे मैं काम पर था कि मेरी छोटी सिस्टर ने कॉल की कि अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी घर आओ। मैं घर ना आया, बल्कि फ़ौरन अब्बू को अस्पताल लाने का कहा। बड़ा भाई अब्बू को अस्पताल छोड़ने आ रहा था। मैं रकम का बंदोबस्त कर रहा था। कहते हैं अस्पताल और थाने में पैसा पानी की तरह लगता है। खैर, एक मेहरबान ने मेहरबानी की और मुझे 20,000 रुपये उधार मिल गए। मैं अस्पताल पहुंचकर अब्बू के आने का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद भाई अब्बू को लेकर आ गया। अब्बू को एडमिट कराया और भाई को काम पर भेज दिया। मैं भूखा प्यासा अब्बू की तीमारदारी करने लगा। डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी थी, साथ ही इंजेक्शन लगा रहा था। दिन 12 बजे अब्बू की तबीयत कदरे संभल गई। मुझे कहने लगे, बेटे आप सोए नहीं, रात को फिर काम पर जाओगे, सो जाओ। मैं कहने लगा, बाबा जान अभी घर चलते हैं, फिर सो लूँगा। मैं भूखा प्यासा अब्बू को ही देखता रहा। कभी तबीयत संभल जाती, कभी बिगड़ जाती। नींद मेरी आंखों से खूब बरस रही थी और रात से मैंने कुछ खाया भी नहीं था। दिन 1 बजे अब्बू की तबीयत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर ने बड़े अस्पताल ले जाने को कहा। मैं फ़ौरन अब्बू को कस्बा मॉडल हॉस्पिटल ले गया। सरकारी अस्पताल था, बिजली गई हुई थी,
मरीज तड़प रहे थे। खैर डॉक्टरों ने अब्बू का चेकअप किया, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने नश्तर अस्पताल ले जाने को कहा। अब्बू की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। मैंने रेस्क्यू को कॉल की। रेस्क्यू को आते आते आधा घंटा बीत गया। एम्बुलेंस आई तो अब्बू को लेकर नश्तर अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में मैंने बड़ी सिस्टर को कॉल करके अब्बू के बारे में बता दिया था, क्योंकि उनकी डिलीवरी हुई थी, यहाँ आ नहीं सकती थी। अब अब्बू की हालत देखकर मैंने कॉल की थी। अब्बू को ऑक्सीजन दी गई थी। मेरे एक हाथ में ड्रिप वाली बोतल थी, दूसरा हाथ अब्बू के बाजू पर था। अब्बू मुसलसल मुझे देख रहे थे। मेरी नज़रें उनका सामना नहीं कर रही थीं। मैंने देखने की कोशिश की, बगौर देखा। मैंने महसूस किया जैसे मुझे कह रहे हों, बेटा आपने मेरी बात नहीं मानी, नींद नहीं की, नाश्ता नहीं किया, मैं भी आपकी बात नहीं मानता, आपको छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा मेरे बाद अपने भाइयों का ख्याल रखना, अपनी छोटी सिस्टर को कभी उदास ना करना, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना। ज़िंदगी में उसने मेरा बड़ा साथ दिया है, उसे कोई गम ना आए। बहुत से अहद लेकर, कसमें लेकर खुद अपनी नींद सो गए। अभी नश्तर अस्पताल इमरजेंसी पहुंचे ही थे कि अब्बू लंबी लंबी सांसें लेने लगे। मैंने डॉक्टर की तवज्जो कराई तो कहने लगे, बेटा हौसला करो। इमरजेंसी ले जाते हुए अब्बू ने दम तोड़ दिया। उफ, मेरे खुदाया, ये दिन भी देखने थे। मैं अकेला तन तन्हा अब्बू के लाशे से लिपट कर रो रहा था। मेरे बाबा कब के बेसुध पड़े थे और मैं उन्हें जागने के लिए इल्तिजाएं कर रहा था। वो तो मीठी नींद सो गए थे, ऐसी नींद जिससे आज तक कोई ना जाग सका। बेचारे तन तन्हा हजारों बीमारियों से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार गए थे। रोता चीखता एम्बुलेंस से अब्बू की बॉडी वापस घर ले आया। सिर्फ 4 घंटों में अब्बू जान इस जहां से चले गए थे। नमाज जनाजा के बाद तदफीन के लिए कब्रिस्तान चला गया। अपने हाथों से अपने पापा जान को मनो मिट्टी तले दफन कर दिया। अपने उस दोस्त को जिसने बचपन में मेरी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया था, आज उसकी उंगलियां पकड़ने का वक्त आया तो दर्द जुदाई दे गया। खुद को आज़ाद करके मुझे बेदर्द दुनिया में भारी बोझ देकर रुखसत हो गया। मैं तन्हा ज़माने की फजूल रस्में निभाने लगा। अब्बू जान के मर्ग पर उठने वाला खर्च भी मैंने ही किया। ज़माने की ज़ुबान को लगाम देने के लिए उधार लेकर अब्बू की मर्ग का खर्च किया। वक्त था, हज़ारों ज़ख्म देकर गुजर गया। मगर मैं सोचता हूँ आज वो मसीहा मुझे ना मिलता, मुझे ज़िंदगी ना मिलती, मैं ज़िंदा ना होता तो ये अहद कैसे निभाता। भला हो उस डॉक्टर खादिम हुसैन खेड़ा का जो मसीहा बनकर आया। अब्बू जान की वफ़ात के 6 माह बाद मेरी शादी हुई। वही मेरी हमसफ़र हमेशा के लिए मेरे आंगन में आ गई। मेरी शादी में मेरा मसीहा भी आया। अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर मेरी खुशियों को दोबाला किया। मैंने इनकी मुलाकात आने वाले तमाम लिखारियों दोस्तों से कराई। उस दिन उस मसीहा ने अपनी जो दास्तान सुनाई, खुशी के इस मौका पर सभी की आंखें अश्कबार थीं। कहने लगे, जब मैं स्टूडेंट था इस वक्त मुझे मजीद अहमद जाई की तरह बीमारी ने आड़े हाथों लिया था। बीमारी के इलाज के लिए मारा मारा फिरता रहा, मगर कोई हकीम, डॉक्टर, पीर फकीर इलाज ना कर सका। जिसके पास गया उसने ही लूटा, उसने ही मेरी रगों से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ने की कोशिश की। कॉलेज लाइफ का ज़माना था, जवानी थी और जवानी तो दीवानी होती है। मैं भी शायरी करता था, मुझे भी लिखने का शौक़ था, मगर सब इस बीमारी की नज़र हो गया। मैं तड़पता रहा, सिसकता रहा, आंसू बहाता रहा, दर्द सहता रहा। ज़िंदगी सब्र और तकलीफ़ें सहने का नाम है। मैंने भी सब्र का दामन थामे रखा और बर्दाश्त करता रहा। एक दिन अल्लाह ताला से पैगाम मिला। दिल में ख्याल आया,
میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں سے سبز رنگ کی ایک بوٹی ملی، میں نے اسے رگڑ کر پی لیا۔ اس جڑی بوٹی کا پینا تھا اور میرا ٹھیک ہونا تھا۔ میری بیماری ایسے رفو چکر ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ پھر کیا، اس دن سے میں اسی طرف مائل ہو گیا، پڑھائی بھی جاری رکھی اور ریسرچ بھی کرتا۔ میں نے بہت محنت کی، ظلم سہے، درد برداشت کیے، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے طے کر لیا، اپنی جگہ جہاں بھی ہوں انصاف کروں گا۔ میں نے پڑھائی مکمل کر لی، کلینک بنا لیا اور الحمدللہ آج تک کوئی مایوس نہیں لوٹا۔ لوگ آنسو بہاتے آتے ہیں اور خوش ہو کر جاتے ہیں۔ میں غریبوں کا دوست اور امیروں کا مخالف ہوں، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا اور نہ ہی کرنے دیتا ہوں۔ یہی میری زندگی ہے، یہی میرا مقصد ہے۔ میں نے شادی کر لی اور بہترین زندگی گزار رہا ہوں۔ میں روحانی علاج بھی کرتا ہوں اور جسمانی علاج بھی۔ جو بھی مریض آتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش ہوں۔ جتنا اس ذات نے نواز دیا ہے اتنی میری اوقات نہیں ہے۔ آج بہت خوش ہوں اور خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ ڈاکٹر خادم حسین کھیڑا صاحب 1 گھنٹہ ہمارے درمیان رہے اور پھر جدا ہو گئے، مگر ان کی باتیں آج بھی گوشہ سماعت میں بازگشت کرتی رہتی ہیں۔ میں اس عظیم ہستی کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ میرا مسیحا خدمت خلق کر رہا ہے، آج بھی اسی طرح اپنے جذبے، اپنے کام میں ڈٹا ہوا ہے۔